It's T-1. The opening ceremony of the Paris Olympics is on Friday. And we are here with the third episode of Olympic Tales. Saurabh, heartwarming response for our second episode. After a bit of brickbats that we got for the first episode. People asked us, where were you guys for so long? Why were you guys only talking about cricket? But now we are here to talk something, very interesting, very, it's going to be heartwarming stuff over the next 14 days. Whatever happens, whether India win 10 medals, whether India win 5 medals, there'll be plenty of stories to tell all of you. And I am being joined by Saurabh Kumar and Kingshuk Kusari. And we have a little bit of a special episode today. This is going to be on Indian badminton. Yeah. A lot of people say that cricket probably is the most powerful and the most popular sport in the country. And badminton is right up there, right? Yeah, definitely. Or maybe going up there. Slowly and gradually it is growing up there. Yeah, as in, if you say that cricket has reached 10 steps, badminton has at least reached 4. Definitely. When you compare the other sports. You can definitely say it's the fastest growing sport in the country right now. I mean, especially for the Olympic sport. Kabaddi is one of the fastest, most consumed sport at the moment after cricket. But yes, Olympic sport, right? And also, to be fair to them, look at the amount of achievements that they have made over the last 3 years. Like, imagine where we were at Tokyo Olympics 2020 and look at the confidence that we have now going into the Paris Olympics. And that's a big, big difference, isn't it? Yeah. And when we were talking to Satvik and Chirag, the former world number 1, the world number 3, India's biggest medal hopes, I asked them this question, whether people fear you guys when you guys step on the court. They are called as the, brothers of destruction. Yes. Imagine an Indian doubles pair to have that reputation on that biggest stage. When they get on the court, you get a feeling that these guys are going to do it. Yeah. Right? A historic Asian Games gold medal last year. A perfect way to warm up for the Olympics. What do you both think? Satvik and Chirag can get us that gold that we have been waiting for? Definitely. This is what I think. Because in badminton, if you look, we have got 3 medals, 2 of which have been won by PV Sindhu, one by Saina Nehwal. No Indian men's badminton player has ever won an Olympic medal. Now we have got 3 candidates in this Olympics. Yeah. Lakshyan, HS Pranay and Satvik Chirag. Yeah. And Satvik Chirag are the favorites because right now they are world number 3, they're seeded number 3. Yeah. And I will not say that they have got an easy draw, but yes, relatively, when we see how they have performed, it looks like they will get to the next round because in doubles, you have got 2 pairs who can progress qualify for the next round. Stage. Yes. And especially how, like me and Kingshuk were talking yesterday about Satvik and Chirag, not yesterday, for yesterday. And we realized that these 2 guys, they are very much, which we can call mentality monsters. Yes. Because when they play big matches, when there are big rounds, there are finals, semi-finals, you see them stepping up big time. They beat their opponents, their top-class opponents, 16-21, 15-21, 12-21. They have done it in the past. And I believe this is their moment of reckoning where they come up and they say, okay, cricket is the... Chirag said badminton does not get that recognition. I believe Chirag and Satvik, they will make sure that badminton does get that recognition after this. Talking about all this recognition and all that, traditionally let me tell our listeners and viewers, we have a special guest for the show today who will be joining us in the next few minutes. Mr. Sanjay Mishra. He is the General Secretary of Badminton Association of India. He has agreed to join Olympic Tales podcast. He'll be the first big guest in our podcast. And we'll get to know from him how the bunch of Paris 2024 have prepared and also about the grassroots level program that they have had and what are the things that they're doing to make badminton sustain that popularity that it has right now. Yeah, go ahead, Kingshuk. Yeah, Where were we now? We were at Satvik Chirag, I guess. Chirag, yes. And the ability of this badminton contingent, what it possesses. Like, I remember the Thomas Cup win that we had in 2022. You were telling me about how 3-0 is the best bet against the great, mighty Indonesian contingent. And that happened to blank the Indonesia 3-0. That is huge. Even when we went to the Asian Championships, the Asian Games, doubles is usually seen as a weaker prospect for any of the teams that out there.
India has managed to turn it into its greatest strength. Yes. And that speaks a lot about us. And we have discussed it before in this podcast only, that our top players, top singles players might be ranked 13, ranked 19, unseeded for that matter. But that does not reflect the true potential of what the squad essentially is. Yeah. This is definitely the strongest Indian badminton squad we have seen in Olympics, and we should expect at a similar level from them. Okay, expect in the sense, are we expecting multiple medals from the badminton contingent? Is that what both of you are saying? Fingers crossed for me. Why not? Hmm. I mean, PV Satvik Sindhu- Chirag, yes, they are contenders to win a medal there. Yeah. So look at all the contenders. Fine. You got Satvik Chirag. They were world number 1. Right now they are world number 3. And as you previously mentioned, they are known as brothers of destruction. Then you have PV Sindhu. Only Indian female athlete to win 2 medals in Olympic history. Yeah. You can never discount her. Never. Yeah. Then comes HS Pranay. At the age of 32, he's going to play his first Olympics. He will be itching to go and hit the ground running. Yeah. What he did at the Asian Games? Yes. Won a bronze Bruno medal. Bronze. Historic medal. Men's singles And bronze. While carrying an Pranoy, injury. Yeah, Pranoy is that kind of a person who's very determined. If you speak to him, Oh, I yes. think I remember speaking to him before the Tokyo Olympics. Unfortunately, he couldn't make the Yeah, cut. he was not there. But he's someone who just doesn't give up. We have seen Srikanth over the years. I'm not comparing these two, Of course. but we have seen Srikanth over the years having been a little inconsistent. He would, storm through one game, but then suddenly go out of steam. But with Pranoy, you don't get that. You always get that, never say die spirit. He'll continue until the last point is won. In badminton, when you see the score is 19-10, you kind of think, from the outside you think, is there no chance? But people there should take it at one point at a time. And we have seen that happen so many times. And this is true for Pranoy, Sindhu, Lakshya, Yeah. Sachi. All of them are big game players. Yeah. I was reading an interview where an Indonesian badminton player was saying that nobody wants to face Lakshya Sen in the Olympics 2024. He's unpredictable, he's fast, he has tremendous reflexes, Yeah. and every big tournament you see, All England, French, China Open, he's done well because it's the mentality that counts there. And, coached by coached at the Prakash Padukone Academy, PV Sindhu has also gone there. It'll be interesting to see how that works. Having been under Gopi Chand in 2016, we all know that that story that India Today covered of her not having ice cream and then ending that drought to have an ice cream after the medal. I think the Prakash Padukone is a completely different beast. He's someone like a Rahul Dravid, right? Yes. He's always there. He's a legendary figure. He gets the work done. It'll be interesting to see how that combination has worked out. She has been on and off ever since she returned from that injury, but she has given herself time to work under these coaches. And I expect, nobody can discount Sindhu. Yes, she is probably 10th seed in women's singles. There are more established players who are tipped as medal contenders, but we always know that Sindhu in a major tournament is going to do something. And I hope a hat-trick of medals. That'll be great. She will be regarded as one of the greatest Indian athletes then, right? If not already. Yeah. If not already, at least in badminton. If not already. No, I think she's one of the most popular athletes. She's one of the most marketable athletes. That's there. But I think the GOAT tag will also come there. Yeah, Definitely it will with one more medal. Yeah. And at this time, before we talk to Mr. Sanjay Mishra, I just want to remember Saina Nehwal here. Because people like us, people like Saurabh, who followed badminton from the 1980s. 1980s, oh my God. Early 2000s, early 2010s. At that time, China was a mental block for us. Definitely it was. And that woman went there, just smashed everyone around, won us that first Olympic medal, and kind of triggered that revolution, which has translated into so many players coming here. I hope she'll be watching and she'll be cheering for Indian players. And we'll also be cheering for our badminton players. Hopefully more than one medal. That will also add to the overall count. Kingshuk, I just wanted to finish this by asking you one thing. Yeah. What is happening to your oldies league in your apartment? Where have you gone there? I'm ranked 2 right now. Doubles, I am still ranked 1 with my partner. Yeah, but no coaching tips from Sanjay Mishra today. Why not? No, please don't. No. What? I have the We are greatest talk- opportunity Yeah, to we are- ask a badminton national coach about some tips. I'm going to ask him some tips, man. That's no other way around it. Yeah, I'm sorry. Let's get there. Let's get there. Yeah, definitely.
we have now been joined by Mr. Sanjay Mishra, the General Secretary of Badminton Association of India. He was a former player and he was a coach as well, so he'll know the inside details of how the badminton runs in the country. Welcome to our Olympic Tales podcast, Sanjay Mishra, sir. Thank Sir, you. great to have you here. Sir, we are represented by as many as 7 shuttlers in Paris Olympics this time. So what do you think of the chances of, doing well and winning medals there? एक्चुअली हमारे 7 सेटलर्स उसमें मेडल विनिंग लेवल के सारे हैं. Yes. लाइक अगर हम बात करेंगे एच.एस. प्रणय, उसने वर्ल्ड के सारे टॉप प्लेयर्स को हराया हुआ है, इज इन गुड फॉर्म. लक्ष्य सेन, वो भी ओलंपिक मेडल के लेवल पे है. सिंधु, नो डाउट, अभी वो बहुत अच्छा खेल रही है. सात्विक चिराग, तो उनने भी अपना परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी है. अश्विनी एंड तनीषा, थोड़ा सा मेडल प्रोस्पेक्ट अगर बोलें तो वो थोड़ा सा वीक है, बट वो ऐसे पेयर हैं जो अपसेट कर सकते हैं. वो उन्होंने बीच बीच में उन्होंने परफॉर्म किया है, वर्ल्ड के टॉप रैंक प्लेयर्स को भी बीट किया है. बट अगर ओलंपिक की हम बात करेंगे तो वो एक ओलंपिक या ऑल इंग्लैंड, ये ऐसा प्रेशर है कि उस प्रेशर में परफॉर्म करना, एक्चुअली पर्टिकुलर डे, उस दिन आप क्या परफॉर्म करते हैं, और दूसरा ओलंपिक मेडल, नो डाउट गेम और सब कुछ के साथ में थोड़ा सा आपका लक भी फेवर करना चाहिए. बिल्कुल. वो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. और अदरवाइज हमारे प्लेयर्स सारे जो मेडल विनर्स जो होते हैं, उनका जो लेवल होता है गेम वाइज, तो हमारे सारे प्लेयर उस लेवल पे हैं. बट अभी मैंने आपका एक लिस्ट है, तो मुझे लगता है कि ये ओलंपिक मेडल्स ऐसा है कि आप एक्चुअली कोई भी फोरकास्ट नहीं कर सकता है कि हाँ इतने मेडल आ जाएंगे या नहीं आएंगे. हाँ, हमारी तैयारी, लाइक शूटर्स, बिल्कुल. नो डाउट वर्ल्ड क्लास शूटर्स हैं हमारे, आर्चर हमारे वर्ल्ड क्लास हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर डे थोड़ा भी अगर आप 0.001% भी अगर आप ऑफ डे अगर है तो आपका मेडल जा सकता है. इसलिए मुझे लगता है कि हमको उनको सपोर्ट करना चाहिए. और नो डाउट उनका तैयारी बहुत अच्छा हुआ है, और उम्मीद है हमें कि इन बैडमिंटन, आई एम टॉकिंग अबाउट बैडमिंटन, Yes. 2 to 3 मेडल्स हम उम्मीद कर सकते हैं. Great, sir. That is great. तो सर, जैसे आपने अभी लक के बारे में बात की, आपने बोला कि नॉट ओनली द प्रिपरेशन बट ऑल्सो द लक मैटर्स. जो मेरे को ड्रॉज पे ला रहा है कि क्या ड्रॉज हमारे अभी प्लेयर्स के साथ हैं इन टर्म्स ऑफ लक्ष्य, सात्विक चिराग, प्रणय एंड सिंधु. आपको क्या लगता है किसको इजियर ड्रॉज मिले हैं और क्या प्रोग्रेस देख सकते हैं हम उनका? प्रणय एंड सिंधु को कंपेटिवली थोड़ा सा ये इजी ड्रॉ मिला है, लेकिन मैं इसलिए ड्रॉ के लिए इतना ज्यादा मुझे नहीं, क्योंकि अगर आपको मेडल जीतना है बिल्कुल. तो आपको तो सबको बीट करना होगा. क्योंकि आप अगर पूल में अगर आप देखेंगे कि ये टफ है, वो तो आपको तो मेडल के लिए आपको सारे मैचेस अपने जीतना है, ये मान के चलना होगा. इसलिए वो उतना और मुझे लगता है कि अगर हम अपने पूल में, अपने ग्रुप में अगर एक टफ मैच खेल के अगर वो जीतते हैं तो कॉन्फिडेंस और आपका बिल्ड होगा और आगे आपको उसका और बेनिफिट मिलेगा. सर, आपको क्या लग रहा है, सात्विक और चिराग, हमारा पास एक वर्ल्ड क्लास डबल्स पेयर है अभी कोर्ट में. व्हेन दे गेट ऑन द कोर्ट इटसेल्फ, डू यू थिंक द ऑपोजिशन प्लेयर्स फियर देम नाउ? हैव दे रीच्ड दैट लेवल? या ऑफ कोर्स, वो हमारा वर्ल्ड क्लास पेयर है डबल्स का, बेस्ट पेयर जो अभी तक हमारे इंडिया में डबल्स का बेस्ट पेयर है, वर्ल्ड का बेस्ट पेयर है. लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ कि आज मेन डबल्स में टॉप 8 या टॉप 10 वर्ल्ड के जो पेयर हैं, ऑलमोस्ट दे आर इक्वल, ऑलमोस्ट. सात्विक चिराग के साथ हमारा प्लस पॉइंट ये है कि दे आर वेरी कॉन्फिडेंट. चिराग मींस डबल्स में हमेशा ये होता है कि एक को एग्रेसिव होना जरूरी है और दूसरे को गेम को कंट्रोल करना. तो चिराग एग्रेसिव होता है, चिराग, बट सात्विक गेम को कंट्रोल करता है. तो ये दोनों बहुत अच्छा पेयर है और मुझे लगता है और हम सबको लगता है कि ये जरूर मेडल लेके आएंगे. और नॉट ओनली मेडल, गोल्ड मेडल लाइन को लाना चाहिए. बट फिर भी हम उनके ऊपर जरा भी प्रेशर नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि
डबल्स में ऑलमोस्ट सारे पेयर इक्वल है, टॉप 10 पेयर्स तो ऑलमोस्ट इक्वल है। पर्टिकुलर डे अगर थोड़ा भी आप कुछ भी आपको प्रॉब्लम होता है तो फिर मैच निकालना बहुत मुश्किल होता है। सर ये तो काफ़ी बड़ा प्रेडिक्शन है कि गोल्ड आएगा, एंड हम भी ऑब्वियसली यही बात होप कर रहे हैं। तो हमारा जो आउटलुक है बैडमिंटन का वो काफ़ी बदला है थॉमस कप विन के बाद। जब हम लोग थॉमस कप जीते थे हम लोग ने भी वो चीज़ कवर किया था, और हम लोग को इतनी खुशी हुई थी कि देख के कि एक वर्ल्ड कप लेवल का टूर्नामेंट इंडिया ने जीता है, वो भी 3-0 इंडोनेशिया को हरा के। उसका रिसेप्शन जो उस वक्त हुआ था, प्राइम मिनिस्टर मोदी पूरी टीम से मिले थे, पर आपको क्या लगता है कि क्या चेंजेस आए इंडिया में एज अ कल्चर बैडमिंटन के लिए आफ्टर थॉमस कप विन? बैडमिंटन की पॉपुलैरिटी काफी इंक्रीज हुई है। अगर थॉमस कप जीतने के बाद की अगर हम बात करें तो पॉपुलैरिटी इंक्रीज हुई है। अभी एकेडमी में मुझे लगता है कि उसके बाद थॉमस कप जीतने के बाद से ऑल ओवर इंडिया में कम से कम 200 या 300 न्यू एकेडमीज स्टार्ट हुई हैं। और बच्चे अभी बहुत अच्छे हैं। जैसे हमारी जो एशियन कप जो विमेंस टीम जो जीती है उसमें हमारे सारी जूनियर प्लेयर्स थे, बिल्कुल। तन्वी शर्मा, अनमोल खरब, और ये 15-16 ईयर्स के प्लेयर्स हैं। और उन्होंने जो परफॉर्म किया, जो जिसके कारण हम वो फर्स्ट टाइम वो टाइटल जीत पाए, तो ये एक बहुत अच्छा साइन है। अभी प्रियांशु राजावत बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो नो डाउट। और अभी बीआई ने भी अभी ग्रास रूट लेवल पे, मेनली जो जरूरी होता है ग्रास रूट लेवल पे, कोचेस प्रोग्राम स्टार्ट किया है, कोचेस डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया, जिसके ऑलरेडी हमने 6 या 8 सेंटर में ऑलरेडी कर चुका है उसको। तो ये इन सब का काफी हमको फायदा मिलेगा, और मुझे लगता है कि अ, इंडिया में बैडमिंटन का फ्यूचर ब्राइट है। और अगर हमको इस ओलंपिक में अच्छे मेडल्स मिलते हैं तो नो डाउट उसका भी काफी फर्क पड़ेगा। क्योंकि अभी पहले था कि बैडमिंटन ठीक है, आप टाइटल जीत रहे हैं, मेडल जीत रहे हैं, बट जो एक बहुत जरूरी होता है प्लेयर को कि नेम फेम मनी, तो ये भी अभी काफी मिल रहा है प्लेयर्स को, और ये एक बहुत अच्छा साइन है। और इसके कारण भी काफी अट्रैक्ट हो रहे हैं लोग। क्योंकि अदरवाइज एक क्रिकेट ही ऐसा गेम है जिसमें नेम फेम के साथ काफी पैसा भी मिलता है, लेकिन अब बैडमिंटन में भी प्लेयर्स को पैसा भी मिल रहा है, नेम फेम तो मिल ही रहा है। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा साइन है, और फ्यूचर काफी अच्छा है बैडमिंटन का। सर जैसे अभी आपने बोला कि बैडमिंटन में भी अभी नेम फेम मिल रहा है और पैसा बहुत ज़रूरी है किसी भी स्पोर्ट्स में, किसी भी प्लेयर को आगे बढ़ने के लिए, एक मोटिवेशन के लिए। तो चिराग ने जब इंडियन टीम वर्ल्ड कप जीत कर आई और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जब इंडियन क्रिकेटर्स को पैसा दिया, कुछ करोड़ रुपए दिए, तो चिराग ने क्वेश्चंस उठाए कि जब मैं थॉमस कप जीत कर आया तो मुझे क्यों नहीं इस तरह का रिसेप्शन मिला। और साइना नेहवाल ने भी एक पॉडकास्ट में बोला भी कि क्रिकेटर्स को जो रिसेप्शन मिलता है वो बैडमिंटन प्लेयर्स को नहीं मिलता है, जबकि बैडमिंटन एक बहुत टफ स्पोर्ट है, फिजिकली बहुत ज़्यादा टफ स्पोर्ट है। तो क्या आपको लगता है कि सर कि ओलंपिक्स जीतने के मेडल में, ओलंपिक्स मेडल जीतने के बाद ही ये चीज़ें बदलेंगी? बिकॉज ऑलरेडी हम 3 ओलंपिक मेडल जीत चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी मेंस कोई भी आदमी हमारा बैडमिंटन में मेडल नहीं जीता है। नहीं, आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन अभी लास्ट मंथ हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब के साथ मेरी एक मीटिंग हुई थी। तो उनने मुझे बोला, मैंने यही बात उनसे बोला था कि बैडमिंटन नहीं, किसी भी दूसरे स्पोर्ट्स में प्लेयर्स को नाम, नेम फेम मनी, ये सब अगर मिलेगा तो ये प्लेयर्स काफी अट्रैक्ट होंगे। और दूसरा, जो न्यू जनरेशन है, पेरेंट्स हैं जो बच्चों को किसी खेल में डालना चाहते हैं, तो वो उस पर काफी असर पड़ेगा। और मंत्री जी ने मुझे बोला था कि हमारा ये प्लान है कि जो मेडल विनर्स होंगे ओलंपिक के, उनको हम पूरे देश में, उनके लिए हम एक रैली जैसा निकालेंगे। और हम जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, हम उनसे बात करेंगे कि उनके ऊपर वो पैसा खर्च करें। टीवी पे उनको हम कोशिश करेंगे कि उनको जो एड में उनको लाएं, कंपनी उनको यूज करे, जिससे बच्चे उनको देखें और मोटिवेट हो। तो ये अगर एक्चुअली ये होता है तो ये बहुत अच्छा कदम होगा। Sir, in terms of the BIA support that the Paris-bound athletes have received, can you elaborate on that bit, sir? The top scheme has always been there, but in terms of BIA support, monetary support, and other kind of support that the shuttlers have received, can you elaborate on that, sir? मैं ओलंपिक की बात नहीं करूंगा, बट अदरवाइज Sure, sir. बैडमिंटन में हमने जो जो साई से जो भी सपोर्ट मिलता है, जो
टॉप से सपोर्ट मिलता है, नो डाउट वो बहुत है, लेकिन हमने कैश रिवार्ड हमने प्लेयर्स के लिए, हमारे प्रेसिडेंट साहब ने स्पेशली बोला हुआ है कि अगर 500 या उसके ऊपर के जो भी टूर्नामेंट है उसमें हम प्लेयर्स के परफॉर्मेंस पे कैश रिवॉर्ड देते हैं। और हमने पिछले 2 साल में लगभग 2 करोड़ रुपए कैश रिवॉर्ड दिया। टीम जब जीती थी उस समय 1 करोड़ हमने Yes. प्लेयर्स को एंड 25 लाख सपोर्ट स्टाफ को दिया था। अभी भी हमने जो टीम हमारी विमेंस टीम जो फाइनल जीती थी 40 लाख उनको दिया। जो अदर साई या टॉप्स का है वो अलग है, लेकिन बीआई ने इनको सपोर्ट किया था। उसके अलावा उनको जो भी अभी जैसे ओलंपिक में जो शटल्स यूज होने वाली है F90, Yeah. वो नॉर्मली वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। हमने योनेक्स से बात करके वो शटल, और बहुत कॉस्टली शटल है वो, उसका MRP 21,000 है। तो वो शटल हमने प्लेयर्स के लिए प्रैक्टिस के लिए कि एटलीस्ट जाने के पहले वो यूज टू हो जाए, तो वो शटल्स हमने अवेलेबल करा कि उनको प्रैक्टिस के लिए। सिंधु जर्मनी जा चुकी थी, हमने बाई पोस्ट हमने उसको कुरियर किया वो शटल्स, जिसमें उसके प्रैक्टिस हो सके। तो बीआई से हर तरह का जो मैक्सिमम जो बेस्ट पॉसिबल सपोर्ट हो सकता है प्लेयर्स का, जो भी डिमांड होता है हम ट्राई करते हैं कि वो फुलफिल करें। Great, sir. And talking about Sindhu a little bit, can she complete a hat trick, sir? What are the expectations from her? ऑफ कोर्स अभी आफ्टर इंजरी वो जो परफॉर्म कर रही है, उसने 1 या 2 टूर्नामेंट पे ठीक है उसने फाइनल नहीं जीता, बट उसका जो गेम स्टाइल है वो किसी को भी, वर्ल्ड के किसी भी प्लेयर्स को वो बीट कर सकती है। और अभी वो वापस पुराने फॉर्म में, जो मैंने उसको 2 साल या 3 साल पहले जो देखा था, अभी मैंने उसके कुछ मैचेस देखा, इज इन Yes. वेरी गुड फॉर्म और वो कॉन्फिडेंट भी नजर आ रही है। तो मुझे लगता है कि अगर कुछ अनहोनी नहीं हुई Yeah. तो ऑफकोर्स उसका हैट्रिक होगा। Great. सर आप जूनियर नेशनल टीम के कोच रह चुके हैं। आपने इन हमारे जो करंट क्रॉप ऑफ प्लेयर्स भी हैं उनको भी आपने बड़े होते हुए देखा है। थोड़ा उनके बारे में बात कीजिए, कब आपने उनको स्पॉट किया, कब आपको लगा कि ये वर्ल्ड बीटर्स बन सकते हैं, इनमें से बदमाश कौन है और अच्छे लोग कौन है, शैतानी कौन करते हैं कौन नहीं करते हैं? नहीं देखिए, बदमाश बोलने से मींस नॉटी वो Yeah. होता है कई बार, और प्लेयर्स को थोड़ा सा होना जरूरी भी है। जैसे आप अगर बात करेंगे लक्ष्य के साथ, मैंने लक्ष्य बहुत ट्रैवल किया मेरे साथ जब वो फर्स्ट टाइम एशियन जूनियर June. चैंपियन बना था जकार्ता में। उस समय भी मैं साथ में था। फिर अर्जेंटीना में यूथ ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल उसको मिला था, उस समय मेरे साथ में था। तो उस समय थोड़ा सा उसका फिटनेस का थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम लगा था, बट अभी वो काफी अच्छा। और अभी पिछले 2-3 सालों में मैंने देखा उसका डिफेंस बहुत अच्छा, Yeah. एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो गया है। Hmm. और अटैक तो उसका शुरू से बहुत अच्छा था। और नॉटी में थोड़ा सा लक्ष्य नो डाउट है। और अगर आप बोलेंगे टीम, लेकिन ये अच्छा एक टीम जब हमारी थॉमस कप या कोई सुधीर मान का पैसे, जब टीम हाँ. एक कहीं खेलने के लिए जाती है तो लक्ष्य या चिराग, इस तरह के प्लेयर्स टीम में होना बहुत जरूरी होता है, जो एंटरटेन भी करें अपने साथियों को और वो एक साथ लेके भी चलते हैं। जैसे चिराग, वो किसी का बर्थडे है तो वो पूरा प्रोग्राम सेट करता है, वो केक का इंतजाम करना, या तो ये इस तरह का बहुत जरूरी होता है टीम में होना। तो नो डाउट ये हमारे प्लेयर्स डिसिप्लिन भी हैं और नॉटी भी हैं। और आई मीन एक एक स्पोर्ट्समैन को जो होना चाहिए, मैं बोल सकता हूँ कि ये सात्विक को अगर बोलेंगे तो वो बहुत सीधा है। वो मीन्स वो थोड़ा सा चिराग का अपोजिट है। तो वो जरूरी भी है। आपके डबल्स में एक एक का थोड़ा सा नॉटी होना, एक का बहुत फोकस्ड होना या गेम को कंट्रोल करना, ये ऐसा जरूरी है। तो ये ऑलमोस्ट ये सारे प्लेयर्स इनको मैंने जूनियर्स से देखा हुआ है और सभी बहुत अच्छे थे। और लक्ष्य तो जब अंडर 18 का जब जूनियर चैंपियन बना था, एशियन चैंपियन बना, उस समय उसने ये आई मीन प्रूव कर दिया था कि वो आगे चल के सीनियर्स में भी इंडिया के लिए मेडल्स लाएगा। सर अभी आपने पीवी सिंधु के बारे में बात की, सात्विक चिराग के बारे में बात की, लक्ष्यन के बारे में बात की। सर एच.एस. प्रणय 2023 में काफ़ी अच्छे फॉर्म में चल रहे थे, ब्रॉन्ज जीता उन्होंने, वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज जीता, फिर एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज जीता। लेकिन इस साल इंजरी की वजह से काफ़ी उनके परफॉर्मेंसेस में वो परमानेंस नहीं रही है। तो अभी मेडल ओलंपिक्स खेल रहे हैं वो 32 की एज पे। तो आप कैसे देखते हैं, क्या वो लॉन्ग डिस्टेंस जा पाएंगे, मेडल जीत पाएंगे हमारे लिए? ऑफकोर्स एच.एस. प्रणय हमारा ऐसा प्लेयर है जो पिछले करीब 8 सालों से
खेल रहा है और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। थॉमस कप जीतने में एच एस प्रणॉय का काफी बड़ा योगदान था, और उसको बीच में थोड़ा सा फिटनेस की प्रॉब्लम थी, उसके कारण अभी ओलंपिक के लिए उसका ट्रेनर और उसका फिजियो, हमने स्पेशली साई से रिक्वेस्ट किया था, साई ने भी और ओलंपिक एसोसिएशन ने भी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, और दोनों उसके साथ में है। तो मुझे लगता है कि फिटनेस ठीक है, एक कंटिन्यूस 2 या 3 टफ मैच होने के बाद थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम आता है, बट अगर गैप होने से, एक दिन का भी गैप होने से रिकवरी अच्छी होती है। और प्रणय भी मेडल प्रोस्पेक्ट, ऑफकोर्स लक्ष्य और प्रणय, हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये दोनों ही मेडल ला सकते हैं। ग्रेट सर। सर, ये जाने के पहले आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू अबाउट दिस, द नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन गुवाहाटी। सर, उसमें वी हैव रोप्ड इन सम इंटरनेशनल कोचेस, सम हाई प्रोफाइल इंटरनेशनल कोचेस like Mulyo Handoyo. Handoyo was very closely working with Srikanth during the 2017-2018 phase, where Srikanth was at the greatest heights of his career, and we also have Park Tae-sung. So is that going to be the concerted effort from BII in the coming days, that we will work in collaboration with the overseas coaches and we'll improve our training program here? How is that roadmap going to be, sir? ऑफ कोर्स मोलियो मोलियो अभी ज्वाइन नहीं किया, उनका कुछ हाँ, हेल्थ इशू है, या, उनने ज्वाइन नहीं किया। बट पार्क हमारे साथ में है, ऑल इंग्लैंड चैंपियन इवान सोजनो डबल is से, that वो so हमारे साथ yes, में है। yes. शंकर अन्नामलाई हमारे साथ में है। तो मेनली हम उस सेंटर में जूनियर्स पे फोकस कर रहे हैं, Yes. और हम एक सिस्टम बनाना चाहते हैं कि एक 13, 14 या 15 ईयर्स के बच्चे 19 तक, 18, 19 या मैक्सिमम 20 तक वहाँ पे हम उनको ट्रेनिंग दें। और उसके बाद फिर हमारे जो सेंटर हैं हैदराबाद या Yes, बैंगलोर के, Bangalore. Yeah. फिर हम वो उनको वहाँ कर दें, और उसके बाद उनके ऊपर वहाँ प्रॉपर काम हो। तो मुझे लगता है कि अभी जो एनसी में जो ट्रेनिंग चल रही है, जो बच्चे खेल रहे हैं काफी टैलेंटेड हैं, और मुझे लगता है कि जब 2 या 3 साल के बाद हम उनको शिफ्ट करेंगे हैदराबाद या बैंगलोर, तो वो बच्चे मीन्स अभी एक जो लास्ट कुछ सालों में हमारे यहाँ, लाइक पहले प्रकाश सर, उसके बाद लंबा गैप, उसके बाद गोपी, Yes. फिर काफी लंबा गैप, फिर साइना, फिर अभी सिंधु, और उसके बाद अभी हमको एक दो प्लेयर्स कंटिन्यूस मिल रहे हैं जो बिल्कुल. हमारे लिए मेडल ला सकें। ऑल इंग्लैंड में नहीं है तो सुपर 1000 में, 750 में, 500 में मेडल्स हमको कंटिन्यूस मिल रहे हैं। लेकिन फिर भी पॉपुलेशन के हिसाब से, इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से, जैसा चाइना में है कि उनके जो टॉप लेवल पे 20-30 प्लेयर्स हैं, उसके बाद 30-40 प्लेयर्स हैं, Yes. लेवल 2, लेवल 3, उनके और 50-60 प्लेयर्स हैं। तो वो आने में हमको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हमारा मेन फोकस यही है कि हमारे जो, इसलिए हम कंटिन्यूस अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19, ये सब के हम 30-30, 40-40 बच्चे लेके उन पे काम कर रहे हैं, जिसमें ठीक है ऑल 30 कैन नॉट बी चैंपियन, बट Definitely. ठीक है उसमें से अगर 5, 7, 8, 10 भी अगर उस लेवल के निकलते हैं तो वो सक्सेस है। साथ में हम कोचेस का मेनली, कोचेस के लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि नेक्स्ट 5-6 ईयर्स में हम बाहर के कोचेस पे डिपेंडेंट नहीं रहें। हम जैसे अभी पार्क है या सोजनो है, Yeah. इनके साथ हमने हमारे जूनियर कोचेस को लगाया हुआ है। जैसे जो हमारे इंडिया टीम में संयम शुक्ला, Yeah. डबल्स मिक्स डबल्स नेशनल चैंपियन थे, सौरभ शर्मा, ये लोग, इनको हमने सोजनो के साथ लगाया हुआ है। तो वो 2 या 3 या 4 साल के बाद ये होगा कि वो हमको फिर उस लेवल का हम कोच तैयार कर पाएंगे। Yeah. और जैसे अभी हमारे साई प्रणीत, Yes. ये यूएस चले गए हैं। हमारा प्लान ये है कि आगे 8 या 10 साल के बाद, जैसे हम इंडोनेशियन कोचेस को या ढूंढते हैं, या Yeah. ऑल ओवर वर्ल्ड में इंडोनेशियन कोचेस जाते हैं, हमारे कोचेस ऑल ओवर वर्ल्ड में जाएं और कोचिंग दें। हमको तो बेस्ट कोचेस लेना ही है, लेकिन हमारे जो बाकी भी कोचेस हैं, बिल्कुल. वो उनको दूसरी कंट्री उनको बुलाए और उनसे कोचिंग ले। Sir, before we end this, what is your message to the Indian contingent, and what is your message to our badminton contingent there? मेरा हमारे प्लेयर्स को केवल एक ही कहना होगा कि वो बहुत हार्ड वर्क किए उन लोगों ने, मैंने उनका देखा है, बहुत प्रैक्टिस किया, बहुत मेहनत किए हैं, और नो डाउट
पीएआई या साई या स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री या पूरा इंडिया उनसे मेडल की उम्मीद कर रहा है, लेकिन ये बिल्कुल भी प्रेशर उनको नहीं लेना है, क्योंकि Yes. अगर मेडल मिलता है बहुत अच्छा, अगर वो नहीं भी मिलता है तो वो हमारे हीरो हैं और रहेंगे। तो उनको इस बात का बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना है कि मेडल नहीं मिला तो क्या होगा, क्योंकि मेडल मिलना या नहीं मिलना ये बात की बात है, लेकिन उसके पीछे जो उनका हार्ड वर्क है, नो डाउट वो मुझे मालूम है कि उनने कितना हार्ड वर्क किया है, एंड वो मैटर करता है। Great. That's great. That's very well put, sir. I hope everybody thinks that way. And with all that hard work that we have put in the lead up to the Paris Olympics, I hope it gets fruitions there. We reach the later stages and we also come back with a lot of medals. Thank you so much for giving your time for India Today podcast. This is Olympic Tales. Keep following it, sir. Throughout the tournament, we'll be coming up with new episodes. Your support will also be very helpful for us. Thank you so much. Thank you for joining us today. थैंक यू। That was one fun interaction with Sanjay Mishra, sir. As in, he was he gave us enough time to explain everything. I hope our viewers also enjoyed that conversation. That where he spoke. My favorite part from that was where he spoke about the effort that the athletes have put in, and not putting pressure on them by talking about medals. That is something that we discussed in the first episode. But I think a lot of the federations and a lot of our support staff and a lot of people in the country also realize that qualifying for Olympics is a big thing. And doing well there, giving your best is what matters the most. And I hope all of us, we enjoyed it, and I hope you guys also enjoyed it. We'll keep bringing more guests from the sporting fraternity, from the Paris Olympics, for the Olympic Tales in the coming weeks. And the opening ceremony is tomorrow. For the first time, it's going to be held. It's not going to be held in a stadium. It's going to be held along the river banks. It's going to be a beautiful thing. And we'll all get the Olympic fever from Friday itself. If you like this episode of Olympic Tales, please do send in your feedback on 8588 966 996. You can also write to us on pods@indiatoday.com. If you're listening to us on Google Podcast, Apple Podcast and Spotify, please do rate us. If you're watching us on YouTube, please share your comments there. We have been happily reading the feedback. We've been waiting. The comment section, we have been inching to go there. Good feedback for the second episode, and I hope we'll continue to do the good work and we'll improve along the way. Thank you for joining us. Have a great Olympics opening weekend.